Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 10 and the name of our chapter is Technology in Everyday Life. Today we are going to make a model of bookshelf. Previously हम different models बना रहे हैं. हमने एक footbridge बनाया था. आज हम एक bookshelf बनाएंगे. So let's quickly move forward towards the recap. So quickly tell me that what is the purpose of footbridge? It is for the pedestrians to cross the road. And what are the steps of making footbridge model? So we adopted different steps. हमने जो है वो किस चीज़ से इसको बनाया था? हमने popsicle sticks से इसको बनाया था. उनको हमने कट किए थे और उसके बाद हमने उसके जो है वो प्लांक बनाया, फिर हमने उसको सपोर्ट दी, देन वी मेड द स्टेयर्स, फिर हमने रेलिंग बनाई थी और इस तरीके से वी अडॉप्टेड डिफरेंट स्टेप्स टू complete the footbridge model. So my dear students, now in today's lecture we are going to make the model of bookshelf. So किस तरीके से किन steps से बनेगा? Let's have a look. Before that, let's quickly move forward towards the pre-reading questions. So quickly tell me, do you have a bookshelf in your room? क्या आपके कमरे में कोई bookshelf है? Okay. So what is the purpose of the bookshelf? उस अगर है या नहीं है तब भी एक bookshelf का purpose क्या होता है? We place books inside it. हम अपनी different stationery, books और इस तरह की चीजें जो है वो bookshelf में रखते हैं to keep them safe. So my dear students, now let's quickly move forward towards the model making. So आपको page जो open करना है, that is page number 127 in your science side books. उम्मीद है तमाम बच्चों ने ये पेज ओपन कर लिया है. So let's start the reading. हम देखते हैं कि किन steps को follow करने के बाद जो है we can make the bookshelf. So, model of bookshelf. A bookshelf is a piece of furniture with shelves to store and organize books, stationery and other printed material. Organizing books and bookshelf makes it easy to identify books, thus it saves our time and energy. Here we will make a simple small model of bookshelf. You can customize its size according to your need and availability of material. So my dear students, basically एक बुक शेल्फ जो है ये ऑर्गेनाइजिंग के लिए होता है और आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं. जब आप ऑर्गेनाइज होते हैं तो आपको चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं एंड यू कैन सेव योर टाइम एंड योर एनर्जी. सो इसी तरीके से जब आपके यू हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स सो यू कैन ऑर्गेनाइज देम इनसाइड द बुक शेल्फ. सो इस तरीके से वो आपको जल्दी से मिल जाएंगी और आपका टाइम भी बच जाएगा. सो आप इस बुक शेल्फ को किन चीज़ों से बना सकते हैं? इसके साइज जो है वो आप अपनी मर्जी से वेरी कर सकते हैं. आप मेजरमेंट्स को डबल कर लें, आपका बुक शेल्फ बड़ा बन जाएगा. So you can customize it according to your need. So my dear students, the material that is required is, let's have a look. So material required is we need cardboard sheet, paper cutter, ruler scale, graphite pencil, glue, glazed paper. So these are the different things that are required. So सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं. So I have glue here. I have a scale for measurement. This is the scale for measurement. I have glue here. I have cardboard sheet, glazed paper, pencil, and I also have paper cutter here. So this is the paper cutter. आप scissor या paper cutter दोनों में से कोई भी चीज़ जो है वो use कर सकते हैं. So my dear students, let's have a look कि सबसे पहले हमने क्या करना है. Cut a large rectangle piece of cardboard 20 centimeter length, 5 centimeter width. So the picture is गिवन हेयर. मैं आपको दिखाती हूँ. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक हमने लंबा सा रेक्टेंगल काटना है. उसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो उसकी विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए. आप इसकी लेंथ और विड्थ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. सो मेजरिंग थ्रू अ स्केल, इस तरीके से आप जो है इसको मेजर करेंगे. ठीक है, सो हमें विड्थ जो कितनी लेनी है 5 सेंटीमीटर है. आपको अगर बड़ा बनाना है तो आप बड़ी भी ले सकते हैं विड्थ. मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी सो दैट इज इट इज विजिबल टू यू. ठीक है, इसके बाद हमें 20 सेंटीमीटर चाहिए. मैं इसको भी लेंथ को भी मैं ज्यादा रखूंगी सो दैट यू कैन इजीली. सो इसको मेजर आपने प्रॉपरली करना है. सो दिस इज इट. इसको हम एक रेक्टेंगल सबसे पहले कट कर लेते हैं. रेक्टेंगल को कट करने के बाद
तो इसको आराम से हम क्या करेंगे, पेपर कटर को, अब तमाम जो है सेफ्टी रूल्स आप पढ़ चुके हैं, इसको आपने बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है. प्लीज आस्क एन एल्डर सिस्टर, ब्रदर और योर टीचर टू हेल्प यू आउट विद इट. ओके, ओके, प्लेस द स्केल सो दैट जो लाइंस है, जो आपका कटिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो. ठीक है, so that is why I am using the scale. So that this is how you will cut out a large rectangle. Cut it twice, तब ये जो है वो properly cut होता है. 2 दफ़ा कम से कम इसको इस तरीके से हम कट करते हैं, तब ये कट होता है. तो टोटल ये चीज़ हमें चाहिए, ये एक रेक्टेंगल चाहिए, इसी से हमारा जो है वो तमाम बुक शेल्फ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो इस तरीके से यू नीड अ रेक्टेंगल. और इसके बाद क्या करना है, लेट्स लुक एट द स्टेप्स नाउ. सो कट द पीस इनटू 3 halves, 6.6 centimeter length और 5 centimeter width and label them as ABC with graphite pencil. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आपको 6.6 सेंटीमीटर, आप इसको, क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली इसको जो है वो थोड़ा सा बड़ा जो है वो रख दिया है. ठीक है, सो अब आपको इक्वल जो है वो लेंथ कट करनी है, 3 लेंथ कट करनी है 6.6 की. विड्थ जो है वो सेम ही रहेगी, दैट इज 5 सेंटीमीटर. सो इधर से हम 6.6 मेजर कर लेते हैं सबसे पहले. तो इस तरीके से हम 3 हाफ्स जो हैं उनको कट कर लेंगे. इनको मैं जल्दी से सीजर से कट कर लेती हूँ, आप पेपर कटर से भी कर सकते हैं. दिस इज अ लिटिल थिनर कार्डबोर्ड शीट. अगर आपकी ज्यादा थिक है तो यू कैन कट इट विद द कटर अगेन. ठीक है, सो इस तरीके से आप इनको कट कर लेंगे और फिर आपने इनको पेंसिल से A, B एंड C जो है वो मार्क कर देना है. सो आई हैव 3 रेक्टेंगल्स नाउ. 5 इनकी 5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 6.6 जो है वो इनकी लेंथ हो गई है. ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है, लेट्स हैव अ लुक. सो इस तरीके से आपने जो है वो रेक्टेंगल को सेंटर से कट कर देना है. 3 आपके पास जो है वो लेंथ्स आ जाएंगी, A, B और C. ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, कट पीस A इनटू वर्टिकल हाफ्स, लेबल देम एज D and E. सो अब आपको क्या करना है, आपको जो A पोर्शन है, जो मेरे पास A पोर्शन है उसको मैं, दिस इज द A पोर्शन, इसको मैं सेंटर में से, बिल्कुल इसको सेंटर में से आप इक्वल मेजर कर लें और आपने 2.2 के जो है वो आपने इस तरीके से जो है वो लाइन ड्रॉ करना है और आपने इनको सेंटर में से वर्टिकली कट कर देना है. ठीक है, इस तरीके से. सो दे आर कट नाउ. इसको आपने किस तरीके से नेम करना है, D and E आपने इनको नेम कर देना है. सो दीज आर द वर्टिकल्स हाफ. मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं इसको. ओके, so D and E are here. Next step is cut piece B into 3 horizontal halves and label them as F, G and H. So अब जो हमारे पास पोर्शन B था, so this is the portion B और इसको हमने, this is portion B और इसको हमने 3 halves में कट करना है. ठीक है, वर्टिकली कट करना है उसको हमने. So मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं. So let's cut them vertically. इनकी भी आप पेंसिल से नेमिंग कर दें क्योंकि वो D, E, F,
G and H. So these are different portions of our bookshelf. Okay, now next part is wrap all these parts in glazed paper. So अब तमाम जो ये halves हैं आपने इनको glazed paper से wrap कर देना है. So here you can see this is the glazed paper. ये हमारे पास यहाँ glazed paper मौजूद है. So अब हमने इनको wrap कर देना है. Wrap आप किस तरीके से करेंगे? So take the glazed paper and the halves. This is the D portion. और हम इनको इस तरीके से जो है वो wrap कर देंगे. ठीक है. सबसे पहले मैं थोड़ी सी glue यूज करूंगी इसके लिए. Take the glue and place it on the corners so that it will be completely intact. ठीक है, सबसे पहले हम इसको इस तरीके से and slightly move it upwards ताकि ये इधर से भी ऐसे रैप हो जाए. Next what I will do this, I will give it a turn. ठीक है, अब आप इसको इस तरह से कट कर लें. ओके, नाउ इट्स डन. सी, ये इस तरीके से हमने इसको रैप कर दिया. इफ यू फाइंड एनीथिंग दैट इज मिसिंग आप उसको जो है वो दोबारा ग्लू कर सकते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट इज आपने बाकी सबको भी इसी तरीके से रैप करना है. सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास join parts D and E with part C at 90 degrees. So my dear students, D and E with the part C. So these are parts D and E जिसको हमने A को vertically कट किया था. ठीक है, इनको हमने पार्ट D के साथ जो है वो 90 डिग्रीज पे अटैच करना है. किस तरीके से अटैच करेंगे? We will attach them like this. ठीक है, so you can use tape or glue anything. मैं पहले glue करूंगी, then I will सी के अगर टेप की जरूरत हो तो आई कैन टेप इट ऑल्सो. सो दिस इज हाउ इट विल बी. थोड़ी सी देर आपको इसको प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा इसके ऊपर सो दैट ये इंटैक्ट रहे. ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन को भी मैं ग्लू कर देती हूं इस तरीके से. और see, थोड़ी देर apply a little pressure. Just like that. Okay, so it will be intact. So अगर आपको ये लगे that it will fall down, so you can tape it also. ठीक है, so here I have a scotch tape. ये transparent जो tape है, you can take the tape और इसको थोड़ा सा आप tape कर दें ताकि ये अपनी जगह पर बिल्कुल जो है वो एक दफा फिक्स हो जाए. आपने तमाम पार्ट्स को कवर करना है जैसे कि मैंने आपको अभी शो किया है. ठीक है, सो होल्ड इट इन योर हैंड और इसको इस तरीके से हम टेप कर देंगे ताकि ये कहीं पे भी हिले नहीं. ठीक है, सो हियर यू कैन सी इस तरीके से हम इसको टेप कर देते हैं. सो ऑल्सो टेप द अदर साइड. ये देखें अभी कितना इंटैक्ट हो गया फुली. अगर आप इसको ग्रुप एक्टिविटी में करेंगे तो ये बहुत इजीली परफॉर्म होगी ताकि आपको हेल्प भी मिल जाए. सो अप्लाई टेप ऑन बोथ द एंड्स. 90 डिग्री के उस पर आपने इसको रख के इंटैक्ट करना है. सो दे आर फुली इंटैक्ट नाउ. ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? लेट्स हैव अ लुक. सो इस तरीके से आप देखें एग्जैक्टली ये इसी तरह से जो है ये हमारा बिल्डअप हो रहा है. ठीक है, देखें आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज
Glue parts F, G and H with part C at equal distances horizontally. Bookshelf model is ready. So my dear students, अब ये हमारे पास जो F, G and H है, इनको हमने equal distance के ऊपर जो है वो पेस्ट करना है. टॉप पे पेस्ट करेंगे सबसे पहले. Again I am using the tape. इनको अपने इक्वल डिस्टेंसेस पे जो है वो पेस्ट करना है. ऑल कॉर्नर्स पे टेप अप्लाई करें ताकि ये स्टिफ हो जाए और अपनी जगह पर रहे. अदर साइड ऑल्सो. सबसे पहले टॉप और बॉटम हाफ्स जो हैं आप इनके अप्लाई करें. इसी तरीके से ये आपने बॉटम के ऊपर भी अप्लाई करना है. Apply tape on the other side also. अब हम इसका मिडिल पोर्शन जो है उसको हम इसके साथ अटैच करेंगे. सो इन दिस पोर्शन मैं ग्लू को लगा लूंगी ताकि ये अब आराम से अटैच हो जाएगा इसके साथ. सो इधर कॉर्नर्स के साथ मैं ग्लू लगाऊंगी. बैक साइड पे ग्लू लगा देती हूँ इसकी. सी इस तरीके से 3 साइड्स पे हम ग्लू लगाएंगे, नॉट ऑन ऑल 4 साइड्स. इस तरीके से ग्लू लगाने के बाद what you will do is place it inside the bookshelf equal distance के ऊपर. So tada, bookshelf is ready. So here you can see our bookshelf is ready to go. So this is how you, by following all the steps and all the measurements, cutting आपने properly करनी है, and this is how you can make the bookshelf. आपने तमाम parts को ज़रूर cover करना है. Because of the shortage of the time, मैंने सिर्फ आपको एक portion जो है इसका back portion जो है वो cover करके दिखाया था. Okay, my dear students, so your bookshelf is ready. Now let's quickly move forward towards the evaluation. So quickly tell me that what is the purpose of bookshelf? एक bookshelf का क्या purpose होता है? So the purpose of the bookshelf is to organize yourself, ठीक है, to save your time by organizing your books. Next is what are the key steps to make a model of bookshelf? We need cardboard, pencil, scale. So आपको measurements proper करनी है, cutting properly करनी है, and cover it, and that's how you can make your bookshelf. Okay, my dear students, so now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it at print from bio teacher. So write down your name and the roll number, and then quickly finish the worksheet. What is a bookshelf? एक bookshelf क्या होता है? It is a shelf to place or organize books. What is the purpose of the bookshelf? The purpose of the bookshelf is to organize the books and to save time and energy. What steps you follow to make the bookshelf model? So आप कौन-कौन से steps follow करके bookshelf को बना सकते हैं? So write down the steps. You can take help from the book also. What safety rules you follow in making the bookshelf model? So कौन-कौन से safety rules हैं जो कि आप follow करेंगे while making your bookshelf? So when you are handling the scissor and the cutter, you must be very careful. और जब आप कोई भी adhesive जो है जैसे कि glue वगैरह होती है इस तरीके से, उसको भी यूज करते हुए यू मस्ट बी वेरी केयरफुल. उसको अपनी फेस के, माउथ या आईज के करीब जो है आपने नहीं लेकर आना. एंड व्हेन यू आर डन विद इट, सो क्लोज द कैप ताकि इसको हम नेक्स्ट टाइम के लिए सेव कर लें. सो दीज आर ऑल द डिफरेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट यू मस्ट टेक व्हेन यू आर मेकिंग द बुक शेल्फ.
Okay, my dear students, complete the worksheet and we will move forward towards your homework. For homework, you will do question number 2 given on page number 138 from section number B and the wrap up of the lesson. So today we have learned that a bookshelf is a piece of furniture with shelves of to store and organize books and stationery and other printed material. So my dear students, I hope you have enjoyed making this model. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.